Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you and welcome to our lectures which are based on the subject of Organization of Commerce and Management. हाँ, आज कुछ नया करना है. द रीज़न इज़ हमारा पहला चैप्टर कुछ ही समय पहले कंप्लीट हुआ है और आज हम पहला पड़ाव पूरा करके सेकंड की ओर जा रहे हैं. चलो, ऑल द बेस्ट आपको और मुझे. नाम क्या है वो तो बता दो. वेल, देख लो. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू अ मैनेजर, ऑब्वियसली ना. ओके, एक मैनेजर करता क्या है? एक मैनेजर, जैसे मैंने एक दूसरे सब्जेक्ट में भी कहा था एक लेक्चर में, कि वो वाहन चालक है, वो ड्राइवर है. ओके, और अगर वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर होगा, मतलब गाड़ी का ड्राइवर नहीं, बिजनेस का ड्राइवर, ओके, तो वो जो उसके काम है वो बराबर से करेगा और उसके वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प होगी. सो टुडे वी विल लर्न कि ये मैनेजमेंट जिसमें मैनेजर्स आते हैं, उन लोगों का फंक्शन क्या है. अभी फंक्शंस है तो 5-6, बट आज हम पहले पे ध्यान देंगे. उसके पहले थोड़ा जो इन्होंने बताया हमें उस पर भी ध्यान देते हैं. सो दिस इज़ ऑब्वियसली मिस्टर हेनरी फेयोल, लॉन्ग टाइम बैक. इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है? टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना. वो क्रिस्टल बॉल में देखते हैं ना, या वो पोपट आता है ना, ओके, पिंजड़े से और कुछ लेकर आता है, चिट्ठी, फिर आप पढ़ते हो, ओ मेरे साथ ये होगा. हाँ भाई, अभी वो नहीं करना हमको, बट एक मैनेजर को ऐसी सोच रखनी है कि 10 दिन बाद क्या हो सकता है, 1 महीने बाद क्या हो सकता है. फोरकास्ट एंड टू प्लान, बिकॉज इफ़ यू थिंक 10 दिन बाद ऐसे होगा, 1 महीने में ऐसे होगा, तो प्लानिंग करो ना अभी से. ऐसे ही मत हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, नहीं देखते देखते क्या होगा. नो 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 नो, उसको प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो. भी प्लान करोगे तो कुछ ना कुछ प्लान करोगे, उसके लिए उसको सक्सेसफुल करने के लिए कुछ ना कुछ सामान आपको लगेगा, तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. टू कमांड, यू हैव टू कमांड. यू कांट बी, यू आर अ टीम कैप्टन, यू आर नॉट अ टीम प्लेयर. देयर आर अदर्स हु आर टीम प्लेयर्स, बट यू आर द कैप्टन. You have to command, you have to do the field placement. पहला ओवर कौन जाएगा, 10वां ओवर कौन जाएगा, तेरा फील्ड प्लेसमेंट कहाँ पर होगा, बैटिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, तुमको कमांड करना पड़ेगा. एंड टू कंट्रोल, यू आर अ टीम कैप्टन. ओके, अगर आपके पास
तेंदुलकर है, विराट कोहली है, सौरव गांगुली है, राहुल द्रविड़, मतलब गुड प्लेयर्स, ऑल आर गुड प्लेयर। आई एम जस्ट सेइंग इफ यू हैव गॉट इतने दिग्गज प्लेयर है और आप इनके कैप्टन हो तो यू शुड नो भाई कैसे इनके ऊपर कंट्रोल रखना है, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट गुड प्लेयर्स, ओके, हु आर टेक्निकली इतने अच्छे प्लेयर्स, बट क्या मतलब है अगर वो फाइट कर रहे हैं, होता है ना, ईगो का इशू हो जाता है, तो तू मैनेजर है, ख्याल तुझको रखना है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस नॉट लेक्चर्स तो काफ़ी है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर हाँ पता है मेरे को, वो नाम है चैप्टर का। क्या है फंक्शंस? पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। टुडे सब पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर कभी खत्म ही नहीं होगा, ओनली द फर्स्ट वन, प्लानिंग क्या होता है। ओके चलो भाई आज उसमें हम लोग थोड़ा जंप मारते हैं। तो पहली बात एकदम सिंपल, मतलब प्लानिंग का क्या है? प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, बिकॉज ऑफ कोविड, okay, when the Indian cricket team goes to England, the BCCI has made a plan of what, कब जाना है, ओके, टीम में कितने लोग रहेंगे, किसको कोविड हो गया, पॉसिबल है बायो बबल, कोई ब्रेक करके बाहर चला गया और उसको अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो गया, तो फिर क्या करेगी, उसका रिप्लेसमेंट कैसे, मैच कब रहेगी, क्या गैप रहेगा बीच में, प्लान, they have made a plan ताकि वो सीरीज सक्सेसफुल रह सके। ओके, सो दैट्स अ सिंपल मतलब ऑफ प्लान। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस रखते हैं। उन्होंने क्या कहा है? कुड्स एंड उडोनल, कोई ऊट्स कहेगा एंड उडोनल, माई सिंसियर अपॉलॉजीज टू द जेंटलमैन अबाउ इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज गलत। ओके, मेरा बुरा कहने का कोई इंटेंशन नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, ऐसे डिफिकल्ट नाम होते हैं इनके। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है प्लानिंग के बारे में? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, एवरी टाइम एडवांस, क्योंकि प्लान आप फ्यूचर के लिए करते हो। यू कैंट प्लान, ए मैं प्लान कर रहा हूँ, तू कब के लिए प्लान कर रहा है? वो एक हफ्ता पहले जो दिन गया ना उसका प्लान कर रहा हूँ। अरे तू पास्ट टेंस का क्या प्लान कर रहा है? वो तो ऑलरेडी हो गया ना, घटना हो चुकी है, उसका प्लान इज ऑलवेज फ्यूचर। तो एडवांस में होना चाहिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। इफ देयर इज अ जॉब, मैनेजर का काम क्या है, क्या करना है, दूसरा कैसे करना है, तीसरा कौन करेगा, चौथा किससे करवाऊंगा। ये देयर आर क्वेश्चन। मैनेजर तू बना प्लान, क्योंकि तेरा काम है, तू थोड़ी काम करने वाला है, तू काम करवाने वाला है। कैसे काम करवाएगा, किससे काम करवाएगा, कितने टाइम में काम करवाएगा, बना प्लान, बना, लिख नोटबुक में। दैट्स बेसिकली अ प्लान। ओके, देन प्रोफेसर जेम्स स्टोनर, इनके मुताबिक प्लानिंग का तात्पर्य मतलब क्या है? अब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं ऊपर चला जाता हूँ और आप नीचे पढ़िए। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज गोल्स। हे, Indian cricket team going to Sri Lanka, Indian cricket team going to England, what is their goal? I want to win. We want to win. We want to be the number one team. I understand this lecture is after the Indian cricket team has unfortunately lost the World Series of Test Championship, but they must have gone with a thinking of what? Goal. क्या गोल है? हमें जीतना है। तो प्लानिंग में क्या हो गया रहेगा, उसके हिसाब से प्लान बना रहेगा। अच्छा, इंग्लैंड का क्लाइमेट कैसे होता है? बरसात होती है, मॉइस्चर होता है, तो अपने पास कितने गेंदबाज हैं, उन लोग उस कंडीशंस में कैसे, क्या स्पिनर काम आएगा, स्पिनर काम नहीं आएगा? यू मेक अ प्लान सो दैट यू कैन अचीव दैट गोल। बराबर? अगर आप प्लान करते हो दोस्तों के साथ में वीकेंड, यार 2 दिन के लिए गोवा जाके आते हैं, ओके प्लान, ओके, कैसे उसको अचीव करोगे? टिकट बुकिंग करना पड़ेगा या गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे तो फिर ड्राइवर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ड्राइवर मतलब अपना आदमी कौन सा ड्राइव करेगा, कितने टाइम के लिए ड्राइव करेगा, पेट्रोल के लिए क्या, ये वो ये सब तुमको प्लान आउट करना पड़ेगा। सो दीज आर द 2 थिंकिंग्स दैट द 2 प्रोफेसर्स और द डिफरेंट थिंकर्स हैव अबाउट द वर्ड प्लानिंग। आज का अहम मुद्दा क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।
ओके प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सी आई रिपीट, आफ्टर दैट देयर आर मेनी अदर फंक्शंस, staffing, coordinating, controlling. There are many other functions. Today we are only concentrating on what? Planning. You see, everyone, okay, has a plan. Or if they don't, they should make a plan. Because without a plan, you are directionless. Okay, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कहाँ जा रहे हो? Okay, नहीं वो जिधर जाना है मैं जाऊंगा, भैया तेरे पास बहुत पेट्रोल है, तेरे पास बहुत पैसे हैं पेट्रोल पे फूकने के लिए, अरे महंगा है पेट्रोल, डिसाइड कर कहाँ पे जा रहा है। ओके, और अगर तेरे पास अगर वो लग्जरी है रात में जाने का, तो रात में जा, ट्रैफिक नहीं लगेगा, पेट्रोल बच जाएगा। सी इट्स अ प्लान। ट्रैफिक कंपनीज के लिए या जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है उनके लिए ट्रैफिक इज अ बिग मुद्दा, बिकॉज दे नो कि अगर अपनी गाड़ी ट्रैफिक में अटक जाएगी तो अपना उतना पेट्रोल डीजल जाएगा, फिजूल का वेस्ट होगा। दे हैव टू प्लान कब अपनी गाड़ी निकलनी चाहिए, किस रास्ते से जानी चाहिए। दैट्स अ प्लान। व्हेन यू वांट टू गो समवेयर एंड यू पुट द डेस्टिनेशन इन गूगल मैप्स, इट गिव्स यू अ प्लान। सर दिस इज हाउ यू आर गोइंग, बट दिस रास्ते में नो इट इज वेरी खतरा, टू मच ऑफ ट्रैफिक सर, देर इज सम गड़बड़, एक्सीडेंट हैपन, डोंट go from this direction. It's a plan. A student, what plan? Well, if you're in 12th standard, you should have a study plan. Because if you don't have a study plan, अरे नहीं, जब मूड आएगा ना तब मैं उसी का टेक्स्ट बुक खरीदेगा, मैं एसपी का मैं मैथ स्टार्ट करेगा। ओके, जब मूड आएगा। तेरा मूड कब आएगा? प्लान बना लो ना भाई, एक टाइम टेबल बना लो, एक नोटबुक ओपन करो, एक चार्ट पेपर ले लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आराम कितना करोगे, करो ना आराम, कोई तकलीफ नहीं है, प्लान तो बनाओ। ओके, नहीं सर जैसा होगा वैसे देखेंगे, जैसा होगा वैसे देखेंगे, तो जैसा तू चाहता है वैसे कभी नहीं होगा। यू हैव टू हैव अ प्लान। सो इंपॉर्टेंस प्लानिंग का पहला, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अगर रास्ता धुंधला है, प्लान करोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? वेल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इफ यू आर अ स्टूडेंट, ओके, एंड यू हैव मेड अ प्लान ऑफ व्हाट टाइम टेबल, मैं आई विल स्टडी इंग्लिश एंड आई विल स्टडी हिंदी एंड अकाउंटेंसी एंड एसपी और मैथ्स और ओसी, ओके, और इकोनॉमिक्स, प्लान बना के रख दिया है। सो इफ देर इज सम धुंधलापन, धुंधलापन मतलब प्लान के टाइम पे आपने देखा इको में इतने चैप्टर्स है रे, ओसी में इतने चैप्टर्स है, लेट मी हाउ टू स्टडी दिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, यू विल गो एंड आस्क समवन, you will go and ask a cousin, a friend who has passed out 12th standard, यार तूने क्या किया, तूने पढ़ाई कैसे की। तो क्या हो जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स कि क्या आपको अचीव करना है, उद्देश्य, वो क्लियर हो जाता है। अगर फॉगी रहेगा, यू टेक समबडीज हेल्प, ओके, कि भाई मेरे को मेरे गाड़ी से कुछ दिख नहीं रहा है, ओके, तो वो विंडशीट जो वाइपर होता है ना, वो क्लियर करके देगा आपका रास्ता। प्लान बनाओगे तो आपको क्या करना है वो क्लियर रहेगा, अदरवाइज आप धुंध में घूमते रहोगे, किधर जा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। मतलब वेल, इफ यू आर गोइंग समवेयर, मैंने आपसे बोला, आपने गूगल में वो डेस्टिनेशन डाला, इट गिव्स यू पाथ ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब आपको चल के, आपको गाड़ी चलाना है, टू व्हीलर चलाना है, वो आपको बोलेगा, आपको सर आपको ट्रेन लेना है, ये वाले रास्ते से जाना, बस ट्रेन, आप टैक्सी लोगे, ये वाले रास्ते से जाना, खुद की गाड़ी लोगे, ये वाले रास्ते से जाना, ओके, आप बाइक लोगे, ये वाला रास्ता। इट गिव्स यू पाथ ऑफ एक्शन कि भाई आपको एक्शन, काम करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। एवरी आर्मी टीम they just don't go to the enemy side, okay, और हमला बोल देते हैं without having a plan, okay, they have a perfect plan, perfect सटीक प्लान रहता है उनके पास में, कौन क्या एमुनेशन लेके कितने लोगों को उस तरफ जाके हैंडल करने वाला है। बिकॉज उनके पास गोला बारूद एम्यूनेशन है और वो दौड़ दौड़ के जाएंगे, ओके, और हमला बोल देगी, अरे भाई कौन किधर है, क्या गन लेके, पता ही नहीं, स्नाइपर एक शॉट मारेगा, खत्म, तुम्हारे बॉम्ब किसी के काम के नहीं। यू हैव टू हैव अ प्लान।
एंड यू शुड, दैट प्लानिंग शुड गिव यू अ पाथ, एक रास्ता देना चाहिए किस रास्ते से छुप छुप कर आप जाके अटैक करोगे। यहाँ पे अटैक नहीं करना है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन अ वे आपको पढ़ाई के ऊपर अटैक करना है। सो इट गिव्स यू अ पाथ ऑफ एक्शन। देन अगर प्लानिंग करोगे तो और क्या होगा, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस मतलब, सो एवरी रनर इन ओलंपिक्स, यू सी फॉर देम सेकेंड्स मैटर। वो सेकेंड से दूसरे से तीसरे से दूसरा तीसरा आते हैं और बोला अरे वो 2 सेकेंड फास्ट था मेरे से, मिली सेकेंड फास्ट था मेरे से, वो फर्स्ट आ गया। when they plan they are training कि मतलब it's only a 0.2 second, millisecond, so your planning has to be such that you can go faster by that 0.2 millisecond by that person। अगर आपको जीतना है तो आपका परफॉर्मेंस स्पीड आपका अगर आपको बढ़ाना है, प्लान आपका ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए। यू विल नॉट फाइंड अ स्प्रिंटर हु रन्स, ही इज वेरी बल्की masculine, नहीं होता। many of them are slim। why? because the moment आप एक हैवी गाड़ी चलाओगे, हैवी वजनदार गाड़ी, ओके, रोल्स रॉयस हैवी गाड़ी, मर्सिडीज हैवी गाड़ी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेट्रोल, क्योंकि उतने वजन को आगे लेकर जाना है। तो इफ यू आर अ हैवी पर्सन and you want to run, you can't run fast, you can but you can't run fast। क्यों? क्योंकि इतना वजनदार शरीर है। हाँ, तो आपका ट्रेनिंग में जो प्लान होना चाहिए शुड बी टू हैव आइडियल वेट, ना कम ना ज्यादा, एंड टू मेंटेन दैट, इतना ही खाओ पियो कि इतना वेट रहे। तो वो जो 0.2 सेकेंड है ना, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर, मैनेजमेंट प्लान करेगा तो क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा। अभी जो परफॉर्मेंस है, अभी जो प्रोडक्शन है, आगे जाकर अगले साल में वो प्रोडक्शन, वो आउटपुट बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मिनिमाइजेस द रिस्क। एवरीवन हु टेक्स रिस्क, माय डियर, everybody takes risk, everybody। when your papa goes out to work, there is risk involved। when your mama goes out to buy bhaji, to buy fruits, okay, घर के लिए, okay, चावल आटा दाल, देखो रिस्क है, रिस्क सब वह है। ओके, आधे एक्सीडेंट्स में जो मारे जाते हैं, ओके, उनका कोई कसूर ही नहीं होता। ओके, वो तो ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, वो तो ऐसे ही फुटपाथ पे चल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दे मेट विथ एन एक्सीडेंट। रिस्क, आप कुछ भी काम करो, ओके, रिस्क होता है। सो अगर हर काम में रिस्क है तो क्यों करना है? अगर नहीं करोगे तो फिर तो आप ऐसे बैठे रहोगे। तो फिर मैं रिस्क का क्या करूं? मैनेज करो उसको, मैनेज कर। मतलब क्या है? इफ देर इज अ रिस्क, मेक श्योर द रिस्क इज नॉट 90%, 10%, 5%, मैनेज कर। ओके, वेन एवर अ पेशेंट इज इल, कोई बीमार है हॉस्पिटल के अंदर, ओके, द डॉक्टर्स मेनी टाइम्स हैव टू टेक अ रिस्क विथ एन ऑपरेशन। ओके, अगर ऑपरेट करेगी इस सिचुएशन में तो पॉसिबिलिटी है ब्रेन डैमेज, हार्ट फेलियर, बट बोलेंगे अगर कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी वो मर जाएगा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, बट व्हेन आई एम ऑपरेटिंग, आई विल मेक श्योर, आई विल वर्क इन सच अ मैनर, ओके, दैट द रिस्क इज मिनिमम। काम तो करना है, देयर विल बी रिस्क, मैनेज करना सीखो। ओके, गाड़ी चलाओगे, देयर विल बी रिस्क, मैनेज करना सीखो। वो रिस्क को बाय मैनेज, व्हाट डू आई मीन, कम करना सीखो। ओके, वट एवर जॉब, नथिंग इज फुल प्रूफ, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती। अगर आप छाता लेकर बरसात में जाते हो, सर एक छींटा किसका, पानी का, मेरे पे नहीं आया, अरे क्या मजाक करता है, होगा ही नहीं। तो ऊपर से लेके नीचे तक अगर रेनकोट भी पहन लोगे, थोड़ा तो पानी, देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्क टू गेट लेट, थोड़ा सा गीला होना ही, उसको आपको मैनेज करना है। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। करोगे तो रिस्क क्या होगा ना, मैनेज होगा। यू विल प्लान इन एडवांस कि हाउ डू आई डू दिस जॉब,
इधर करेगा तो इतना खतरा है, ये करूंगा तो इतना खतरा है। खतरा कम जिस मेथड में होता है मैं वो मेथड एडॉप्ट करूंगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। घर पर, सबके घर पर नॉर्मली मॉर्निंग को पानी आता है। वाटर इज अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स। योर मॉम विल, इनफैक्ट ऑल मॉम्स आर मैनेजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये टैगलाइन यूज करना आप, ऑल मॉम्स आर managers. My mom is a manager because she's managing your house. She's managing A to Z, everything in your house. If there is a husband, normally she's managing everything of a husband. खाना, कपड़ा, कब खाना बनाने का, कितना खाना बनाने का, कब टिफिन बनना चाहिए, कब क्या पैक करना चाहिए, she's managing. 2 kids, 3 kids, पढ़ाई मैनेज हो रही है, उनका कॉलेज आना जाना, स्कूल आना जाना, कैसे जाते हैं, कब आते हैं, किसके साथ जाते हैं, ओके, कपड़ा धोना, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके। तो शी मेक्स श्योर कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ, सोचो घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, शी विल ऑन इट इन द मॉर्निंग व्हेन पानी आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है, बिल्डिंग में पानी आ रहा है, बिकॉज तब प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो वॉशिंग मशीन जल्दी जल्दी काम करेगा। अगर प्रेशर धीमे धीमे है, एक एक टिपका गिर रहा है, द प्रेशर इज वेरी, दो वॉशिंग मशीन विल रन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। योर मॉम हु इज एन एक्सीलेंट मैनेजर विल नॉट डू दैट, शी विल से नहीं, मॉर्निंग के टाइम को ही ये होना चाहिए। शी विल डू द कुकिंग, द क्लीनिंग, द वेसल्स एंड द वॉशिंग, सब जो रिसोर्स घर में है पानी, शी विल यूज इट बेस्ट, ओके। कहते हैं मदर नोज बेस्ट, विच इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज दे आर एक्सेलेंट मैनेजर्स। इतना ही है कि वो नाइटी में या वो साड़ी में, ओके, ये काम करते हैं, इसके लिए हम उनको वो मैनेजर का खिताब नहीं देते, बट हे, योर मॉम इज एन एक्सेलेंट मैनेजर एंड शी यूटिलाइजेस द रिसोर्सेस घर में जो पड़ा हुआ है। इफ आई गो टू कुक इन द किचन, आई डू कुक, हाँ वैसे सच बात है, बट आई लुक एट यूट्यूब रेसिपी, हाँ रेसिपी में क्या बोला, 1 2 3 4 9 10 11 सब होना चाहिए, सब होना चाहिए तो ही खाना बनेगा। वाई? तो अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो, बट यू सेंड अ मदर इन अ किचन, 2-3 आइटम मिसिंग भी रहेगा, शी विल स्टिल कुक इट, ओके। क्यों? शी नोज जो है, रिसोर्सेज जो है, जो मसाले है, उसको यूज कैसे करना है, ओके। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कैसे? Well, if you are a student, my dear, you're planned not just your 12th standard, you're planned आगे क्या करना है, कौन सा कोर्स लेना है, एंड देन लेटर ऑन फ्यूचर पढ़ाई के लिए कौन से कंट्री में जाने का है, सोच के रखा है, आने वाले 5 साल का प्लान है। सो यू नो इन दैट कंट्री, दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी requires me to have these subjects, requires me to do this course, get this percentage, requires me to put in this much of hard work, तो डिसीजन लेना सिंपल हो जाता है। इफ यू आर समबडी, अरे नहीं यार मेरे को तो डीजे बनने का है, गुड, मेरे को स्पोर्ट्स में जाने का है, मेरे को फिल्म में जाने का है, गुड, चलेगा, वो आपका डिसीजन है। उसके लिए पढ़ाई आप एक अलग तरीके से कर सकते हो, एक अलग तरीके का टाइम देकर कर सकते हो। डिसीजंस लेने में प्लानिंग सहायता करता है, मदद करता है, ओके, कि क्या करना है। अगला, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। अच्छा, ये क्या है स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग? वेल, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हैव टू कंट्रोल द एम्प्लॉइज कि वो काम कैसे कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? अगर एक जॉब होना है, एक काम होना है, एक प्रोडक्ट बनाया जाना है, वेरी सिंपल, दिस इज अ पेंसिल। ये पेंसिल एक लेबरर कितने टाइम में करना चाहिए, कितने टाइम में एक पेंसिल उसको बनाना चाहिए? 15 मिनट, 30 मिनट्स। तो आई रिपीट, अगर आप प्लान करोगे तो आप कुछ टेस्ट करोगे एंड यू विल टेल, बिकॉज यू हैव डन द टेस्ट। एक स्टैंडर्ड बना है, मतलब आपने एक टेस्ट किया, आपने एक ट्रायल रन किया एंड यू केम टू नो, देखो भाई ये जो पेंसिल है ना, पूरा प्रोसेस बनने में 45 मिनट्स लगते हैं। सो यू विल टेल ऑल योर वर्कर्स, देखो भाई 45 मिनट्स में तो होना चाहिए, इट इज अ स्टैंडर्ड,
आप सबको बोल रहे हो इतने में होना चाहिए, अगर कोई जल्दी करेगा तेरे को मैं इंसेंटिव दूंगा क्योंकि तूने जल्दी काम किया। 45, अगर तू लेट करेगा तेरा पगार काटूंगा। होता है इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट। सो आई रिपीट माई सेल्फ, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, एक स्टैंडर्ड, अगर ये भाई साहब की गाड़ी यहां तक आ गई तो बाकी के लोगों को भी वहां तक पहुंचना है। क्योंकि ये कैसे पहुंच गया, ये क्या सुपरमैन है? ओके, इसने एक स्टैंडर्ड बनाया तो बाकी के लोगों को भी वो लेवल पे, वो स्तर पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। व्हाट डज दैट मीन? एक शादी के माहौल के घर में, वेडिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, लोग आ रहे हैं गांव से, लोग जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, कोई बैंड वाले के पास जा रहा है, कोई केटरर के पास जा रहा है, कोई डीजे के पास जा रहा है, डीजे के पास जाके कौन सा म्यूजिक बजाने का है वो भी कोई सोच रहे हैं। ओके, नाना नानी आए हैं, घर पे बैठे खाना बनाने का है, कपड़े का क्या, आना जाने का क्या, गाड़ी का क्या, ट्रांसपोर्ट का क्या, अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप प्लान नहीं करोगे एक शादी के लिए कि शादी में कौन कौन सी जिम्मेदारी हैंडल करेगा, प्लान बनाओ, नोटबुक लो, चार्ट लो, मामा जी ये काम करो, काका जी ये काम करो, मामी जी ये काम करो। यू आर एलोकेटिंग द जॉब, ताकि तो प्लान करता क्या है, सभी का काम। अगर कोई शहर की तरफ जा रहा है, अगर आप गांव में रहते हो, ओके, तो प्लान बोलेगा अरे तू शहर की तरफ जा रहा है तो तू जाने वाला है गाड़ी के अंदर ना, इसको भी लेके जाना, तो शहर में दोनों काम हो जाएंगे, साथ में आ जाना, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। ये सुनो, सो आई रिपीट, अगर प्लान होगा कि जो बाकी की एक्टिविटीज है, ओके, ये भाई साहब जो ऊपर जा रहे, ओके, काम करने के लिए, क्या वो दैट कैन ओनली हैपन, ओके, कोऑर्डिनेशन व्हेन प्लानिंग इज देयर। विदाउट प्लानिंग जो लोग गोविंदा के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, देयर इज अ प्लान, नीचे कौन है, ऊपर के लेवल पे कौन है, ऊपर के लेवल कौन, और कौन ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने के बाद में सेफली कैसे, सबके एफर्ट्स, मेहनत जब एक साथ आते हैं तब जाके वो ऊपर की गोविंदा की हंडी तोड़ी जाती है। अगला, facilitates other management functions. Which are the other management functions? Staffing, controlling, coordinating. There are 6 management functions. One of them is planning. जब प्लानिंग सही होगा बाकी के लोगों की गाड़ी आगे जाएगी। अगर प्लानिंग ही बराबर से नहीं होगा बाकी के गाड़ी बैठ जाएगी या कंफ्यूजन होगा। सो आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेन देयर इज अ प्लान, जो आगे आने वाले काम होने वाले हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिलता है, उनकी गाड़ी भी पटरी पे आ जाती है। बट इफ देयर इज नो प्लान, देयर इज कंफ्यूजन इन कंट्रोलिंग, इन कोऑर्डिनेटिंग, इन स्टाफिंग, बाकी जो भी मुद्दे हैं सब में गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, promotes innovative ideas. Okay, what does that mean? You see, for a plan, people sit together. एक ही आदमी प्लान नहीं बनाता, people sit together, and when people come together, new ideas come in mind, because everybody knows कि हमको काम क्या करना है, but कैसे करना है, brainstorming होता है, brainstorming। एक आदमी, ओके, नॉट एवरीबडी इज, कहते हैं ना जब घर में बहू आती है तो उस बहू को होना चाहिए सर्वगुण संपन्न, ऐसा होता नहीं है, सारे गुण एक में होते ही नहीं। वैसे सारे, अगर 10 लोग बैठे हैं, नॉट एवरीबडी विल हैव दी सेम क्वालिटीज, बट एवरीबडी विल हैव सम क्वालिटी इन विच दे आर एक्सीलेंट। तू तेरा एक्सीलेंट क्वालिटी दे, तेरा आइडिया दे, तेरा आइडिया दे, तेरा आइडिया, सबका लेकर कुछ इनोवेट, कुछ नए तरीके से करते हैं। ओके, एवरी वर्क विच वॉज डन येस्टरडे, हर वो काम जो कल हुआ था आज फिर से होगा, बट आज उसको बेहतर तरीके से कैसे करें, हाउ डू आई डू इट इन अ बेटर मैनर। पीपल कम अप विद आइडियाज बिकॉज दे सिट टुगेदर व्हेन द प्लानिंग इज बीइंग डन। ओके, सो दैट्स बेसिकली ऑल द different importance of the function which is the first function of management. How do you remember all of these 10 points? Well, Apple कंपनी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। Apple कंपनी जो आईफोन बनाती है for so many years, उनके फोन में
ब्लूटूथ नहीं था. अमेजिंग. Many of you who are today's generation, 16 years old, 15 years old, 17 years old, you may be like, नहीं सर है. अरे बाबा, बट उनके पहले 7-8 साल में their phone was very advanced. They did not have Bluetooth technology. Okay? शेयरिंग करने के लिए म्यूजिक, फोटोज शेयरिंग करने के लिए है ही नहीं. It was very difficult for Apple users, even though they had a phone which was lakhs of rupees. वो टेक्नोलॉजी, for some reason Apple company ने वो टेक्नोलॉजी डाला ही. Then they introduced the technology called as AirDrop. Okay? कि एक Apple के iPhone से दूसरे iPhone में या एक Apple के डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफर डेटा कैसे करें, फाइल कैसे ट्रांसफर करें. ओके, बट नॉट एवरीबडी इज हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कि वो सिर्फ एप्पल के लिए एप्लीकेबल है, वो दूसरे मोबाइल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. वेल, एप्पल ने बोला है नहीं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है. ओके, ये सिर्फ हमारे लिए यूज होगा. तो आज के 10 पॉइंट एप्पल का हमारे प्लानिंग के साथ ऐसा कोई खास कनेक्शन तो नहीं है. ओके, बट इट विल हेल्प यू रिमेंबर द एयर ड्रॉप टेक्नोलॉजी ऑफ एप्पल, जो काफी लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करता है. ओके, काफी लोग इसके बारे में बुरा कहते हैं कि भाई नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टेक्नोलॉजी. ओके, हाउ विल एयर ड्रॉप सॉफ्टवेयर फेसेस क्रिटिसिज्म? दैट्स द डायलॉग जो आपको याद रखना है टू रिमेंबर द 10 मुद्दे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. एंड ये कैसे क्रिएट करना है? वेल, ए से आता है एक्शन, एक्शन पाथ. इनोवेटिव आइडियाज मिनिमाइजेस रिस्क, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने में काम आता है, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, परफॉर्मेंस को बेटर करता है, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन, बाकी के फंक्शंस को एनेबल करता है, एंड कोऑर्डिनेशन. अगेन वो 10 पॉइंट के फॉर्मेट में नहीं है, पहले मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाता हूँ, बट जब मैं एक कोड देता हूँ और अ फ्रेज, वो आपको हेल्प करने के लिए है कि अगर आपको ये याद रहेगा तो 10 में से 10 तो नहीं, चलो मैक्सिमम पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे ही. सो आई रिपीट माई सेल्फ, टू रिमेंबर द 10 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ माई प्लान टू हेल्प यू नोट कि एयर ड्रॉप सॉफ्टवेयर फेसेस criticism, and obviously जो highlight किया गया है, that is what is going to enable you to remember these points. I hope that the content of this particular lecture, that was the planning and the importance of planning, is understood by you. अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है? लेक्चर को लाइक कर देना है. इसका जो पीडीएफ है, इसका नहीं, जो लेक्चर्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ में शेयर डेफिनेटली किया जाएगा. तो प्लीज़ टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म को जुड़ जाइए. वहाँ पर जो भी हमको डेटा शेयर करना है, पीडीएफ शेयर करने हैं एनी सब्जेक्ट का, वो उस प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा. अगर आपको कुछ कमेंट पास करना है, ओके, अच्छा बुरा इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए. एंड ये चैनल के बारे में दूसरों तक खबर ज़रूर पहुंचा दीजिए, हमारे लिए बड़ी बड़ी सहायता आपकी हो जाएगी. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल डेफिनेटली रखिए. अपना भी स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. Bye for now.